Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So in the last lecture we have talked about the post fertilization event. This event has two processes. The first one is formation of endosperm and the second one is embryogenesis. At the time of fertilization, two types of cells get fertilized. First one is central cell and the second one is egg cell. These two types of cells get fertilized, so we called it the double fertilization. Of course, it is a speciality of एंजियोस्पर्म्स. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनेसिस से पहले होता है बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो. एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है इनका प्लॉइडी लेवल. जो प्लॉइडी लेवल होता है एंडोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में केवल एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल होता है एंड इट इज़ द एंडोस्पर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रायोजेनेसिस. उससे पहले एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. दिस इज द एम्ब्रायोसेक विच हैज ऑलमोस्ट degenerating cells on calyzal end. These are the antipodal cells which are 3 in number, the central cell and the degenerating synergid, and it is egg cell. So the male gamete fuses, suppose it is the male gamete. The male gamete fuses with central cell and form the PEN, primary endosperm nuclei, and when it get fused with the egg cell it form the zygote. It is 3n means it has triple ploidy level, and is 2n means double ploidy level. Now लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि पेन से पूरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसके फंक्शंस क्या क्या थे. टाइप्स भी हम लोगों ने उसके स्टडी किए थे विच आर ऑफ 3 टाइप्स. हेलोबियल जो सेल्यूलर और न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म का मिक्सचर था, cellular type and the nuclear type. So these are the 3 types of endosperms. Now zygote. This zygote divides and form the pro-embryo condition. Pro-embryo condition जो इसकी होती है, pro-embryo condition का मतलब है zygote जब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और zygote डिवीजन कौन सा करेगा, माइटोसिस. इट अंडरगोज टू द माइटोसिस डिवीजन बिकॉज हमें जो इसमें चाहिए है वो है कि सेल्स का नंबर एग्जैक्ट रहे हमारे पास जो एम्ब्रायो भी बनना है. सो इट अंडरगोज टू द माइटोसिस सेल डिवीजन. आफ्टर प्रो एम्ब्रायो इट फॉर्म्स द ग्लोबुलर स्टेज. Then after globular stage it forms the heart shaped stage, and then it forms a mature embryo. So if you want you can note the zygote form the pro embryo, then globular stage, heart shaped stage and the complete embryo. All the division that occur from this stage to that stage are mitosis cell division, which are also called the equational cell division. Now these stages are common in monocots as well as dicots.
डायकॉट्स और मोनोकॉट्स जो दो एंजियोस्पर्म्स के टाइप होते हैं, उन दोनों में ही जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो और प्रो एम्ब्रायो से ग्लोबुलर स्टेज तक की स्टेजेस सेम होती हैं। लास्ट की जो स्टेजेस ये दो हैं, ये डायकॉट्स में होती हैं, बट मोनोकॉट्स में ये स्टेजेस नहीं होती हैं। तो अब हम लोग सेल्यूलर बेसिस पे डिफरेंस समझ लेते हैं। मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो कॉटिलेडन्स के नंबर का होता है, और मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन का नंबर होता है वो है सिंगल कॉटिलेडन इन मोनोकॉट, एंड डबल कॉटिलेडन्स इन डायकॉट्स। सो फॉर्मेशन भी डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर दो कॉटिलेडन्स बने हैं तो हार्ट शेप स्टेज ज़रूर आएगी, बट सिंगल कॉटिलेडन्स के फॉर्मेशन में ऐसी कोई भी स्टेज नहीं आती है। सो लेट्स टॉक ऑन द सेल्यूलर बेसिस। दिस वन इज zygote which is diploid. The zygote undergoes to the mitosis and form two cells. The zygote is present on the micropylar end. The zygote form a basal cell and a terminal cell or apical cell. These both cells are 2n in number, means dicot in number. Now the basal cell divides first and form a suspensor. The suspensor may be 6 to 10 cell long, and then the apical cell divides and form the globular cell stage. After globular cell stage, it forms the other stages. Globular cell stage means it is almost the shape of a globule, or it is round shaped. You can easily draw it like this. It is the easiest method to form a cellular structure of anything. So if I show this basal cell through this red color, and this apical cell through this black color, so you can easily differentiate it. The apical cell continuously divides and form a group of cells or a bunch of cells which is almost circular or round shaped, so it is called globular stage. Now below this globular stage there is a 6 to 10 cell long suspensor. This forms the hostera, it is suspensor. It forms the hostera which absorbs the nourishment from the embryo sac and provides this nourishment to this developing embryo. Now when we are talking about particular for the dicotyledonous embryo, some cells of this region, middle region, these cells stop dividing, and then the cells from the corner region divides frequently and form the structure like this. So it is called the heart shape stage,
As you can see, the cells which stop division from this region form two cotyledons. These corners divides and form larger cotyledon like structure, and finally two cotyledons are formed in this embryo. Here the suspensor. So finally the complete embryo form. दोनों में डिफरेंस क्या होता है डायकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रायो में, वो हम लोग एनसीईआरटी में हमारे जो फिगर है उसको लेकर देखते हैं, तो फिगर से समझ लेते हैं. So students, you can see the figure of embryo from your NCERT book. फिगर देखने से ही पता चल रहा है कि ये डायकॉट एम्ब्रायो का फिगर है, बिकॉज इट इज़ हैविंग टू कॉटिलेडन्स. इन दोनों कॉटिलेडन्स के अलावा जो और स्ट्रक्चर्स इसमें शो हो रहे हैं, दीज आर प्लूमूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड द रूट कैप. सो प्लूमूल इज द शूट टिप, जो कि एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट होता है, और नीचे की तरफ सिलिंड्रिकल हाइपोकोटाइल का टर्मिनल रीजन आपको दिख रहा होगा, जो रेडिकल नाम से शो है. इसका मतलब होता है रूट टिप, जिसका एंड पार्ट रूट कैप से प्रोटेक्टेड रहता है. बुक के फिगर को थोड़ा रियल लाइफ कंटेंट से जोड़ते हैं. रियल लाइफ कंटेंट में आपने देखा होगा, आप लोगों ने अपने घर में जर्मिनेट करता हुआ कोई सीड देखा होगा, या फिर स्प्राउट्स तो खाए होंगे. तो उन स्प्राउट्स में नीचे जो एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, दैट वन इज़ द रेडिकल. और इसी का एंड पार्ट जो होता है वो रूट कैप से प्रोटेक्टेड रहता है. ये रेडिकल एम्ब्रायो के जिस पार्ट का टर्मिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. देखो बच्चों, हाइपो का मतलब होता है नीचे. अब कभी आप लोग जर्मिनेट करते हुए सीड को देखो ना, तो केयरफुली उस सीड का सीड कोट हटा के देखना. स्पेशली ग्राम या बीन के सीड में देखना, काफ़ी इजीली विजिबल होगा. तो वहाँ आपको दिखेगा कि दोनों कॉटिलेडन्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड द एम्ब्रायोनल एक्सिस. और इस एक्सिस में कॉटिलेडन्स के लेवल के ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द एपिकोटाइल, और इसी एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट होता है प्लूमूल, जिससे पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनता है. सीड जर्मिनेशन के टाइम जो छोटी छोटी सी लीव्स, मतलब जो लीफ प्रिमोर्डिया आपको इमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, दैट इमर्जेस आउट फ्रॉम दिस प्लूमूल. एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे साइड का पार्ट, जहाँ से वाइट कलर का टेल लाइक पार्ट इमर्ज करता है, इट इज़ कॉल्ड द हाइपोकोटाइल, एंड दैट वाइट पार्ट इज कॉल्ड द रेडिकल और द रूट टिप. सो डायकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स क्लियर. नाउ मूव टू द मोनोकॉट एम्ब्रायो. ये ग्रास फैमिली के मोनोकॉट एम्ब्रायो का एलिस है. फिगर को ध्यान से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिगर की ही लेवलिंग करने को दे दी जाती है. सो ग्रास फैमिली के इस एम्ब्रायो में जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, स्क्यूटेलम, वो ये स्क्यूटेलम जो है वो सिंगल लेटरल कॉटिलेडन है. देन यू कैन सी द कॉलियोप्टाइल. कॉलियोप्टाइल जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास या शीथ होता है, जिससे प्लूमूल और लीफ प्रिमोर्डिया कवर रहते हैं. सेम एज सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कोलियोराइजा. इसमें रूट और रेडिकल जो पार्ट होते हैं वो इससे कवर रहते हैं. कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है ये याद रखना बहुत इजी है. कोई भारी भरकम ट्रिक नहीं बनानी है आपको. सिंपली ध्यान रखो, आर फॉर रूट, रेडिकल एंड कोलियोराइजा. सब में देखो आर आ रहा है, आर लेटर सब में है, और ऐसे ही कोलियोप्टाइल और प्लूमूल वर्ड में पी दोनों में आ रहा है. सो ध्यान रखना कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. मोनोकॉट के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर. इसमें एक और अलग सा नाम आपको दिख रहा है, एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट क्या होता है? ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है, क्योंकि मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, और ग्रास फैमिली में उसे भी क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम. सो ये जो अनदर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन. सो मोनोकॉट और डायकॉट दोनों की एम्ब्रायोजेनी और एम्ब्रायोनल स्ट्रक्चर्स क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और साथ में एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रायोनी जैसे कुछ अलग केसेस होते हैं, उनकी भी हम लोग स्टडी करेंगे.
टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।